हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 12 अक्टूबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट इन लाइन फॉर कोविड वैक्सीन, दोज एट हाई रिस्क एंड एक्सपोजर। Laying out the sequence of this distribution of COVID-19 vaccines that are expected to be available in India, Union Health Minister Dr. Harshvardhan that the first priority will be for those facing occupational hazards from the virus and exposure risk, indicating that healthcare professionals at the front line would be among the early recipient. जैसे कि हम लोग ने पहले भी ये पढ़ा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है जो सबसे पहला वैक्सीन उनको ही मिलेगा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जैसे कि डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिक टीम्स हो या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो, जो भी हो, इन लोगों को सबसे पहला वैक्सीन मिलेगा। और वही यहाँ पे भी कहा गया है कि उन लोगों को ही सबसे पहला वैक्सीन उन लोगों को ही मिलेगा जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर रिस्क में है। The minister said that the much-awaited Feluda paper strip test is likely to roll out within the next few weeks. The test, which uses gene editing technology to detect the virus in less than 30 minutes, has been developed by the New Delhi-based CSIR Institute, Genomics and Integrative of Biology. IGIB के द्वारा ये फेलुदा पेपर स्ट्रिप बनाया गया है, जो कि उसमें ऐसा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो वायरस को 30 मिनट्स के अंदर ही डिटेक्ट कर लेगी। और जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव ऑफ बायोलॉजी जो IGIB इंस्टीट्यूट है, ये CSIR बेस्ड इंस्टीट्यूट है। CSIR इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट, PM Modi launches physical distribution of property cards under Swamitva scheme. Prime Minister Narendra Modi launched the program of physical distribution of property cards under the Swamitva scheme on 11th October 2020 through video conferencing. The survey of villages and mapping with improvised technology in village areas, यही स्वामित्वा का फुल फॉर्म है। SVAMITVA का फुल फॉर्म है The Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. It is a central sector scheme which was launched in April 2020 to provide the record of rights to document the residential properties to village household owners in rural areas and issue property card. जो रूरल एरियाज में है, जो विलेज में रहते हैं, उन लोगों के पास अपने प्रॉपर्टीज कार्ड नहीं होते, प्रॉपर्टीज पेपर नहीं होते, तो ये उन लोगों के लिए एक रिकॉर्ड है, अपने प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है एक तरह का, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्वा स्कीम के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, Delhi government becomes first to launch tree transplantation policy. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has passed a first of its kind in India tree transplantation policy to preserve trees for clean and green Delhi. As per this policy, the trees which needs to be felled due to any circumstances like for constructions and other development projects would not be cut but instead uprooted and transplanted somewhere else. तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया पॉलिसी स्टार्ट किया है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसके जरिए दिल्ली को क्लीन भी रखा जाएगा और ग्रीन भी रखा जाएगा। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन की जरूरत होती है या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है, तो पहले वहां पे जितने भी पेड़ होते थे सबको काट दिया जाता था, लेकिन इस पॉलिसी के द्वारा वो पेड़ को काटा नहीं जाएगा, वो पेड़ को उसके जड़ से उखाड़ लिया जाएगा और उसे कहीं और जाके प्लांट कर दिया जाएगा। तो यही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज ड्राइविंग बटरफ्लाइज moths higher up in Himalayas. Rising average temperatures in the Himalayan range have driven several dozen species of butterfly and moth to habitats higher up in the mountains, a new study commissioned by the government has found. The findings of the study will be used as a baseline indicator to track the impact of climate change on animal species
over the coming decades. तो क्लाइमेट चेंज हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरा नहीं है, ये एनिमल्स, बटरफ्लाइज, इवन इंसेक्ट, सब के लिए ये खतरा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, क्लाइमेट चेंज के वजह से बटरफ्लाई और मॉथ हिमालय के ऊपर तक, हायर अप तक जा रहे हैं, जितने ऊपर हो सके उतने ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है जो उनके रहने लायक नहीं है, इसीलिए उन्हें हिमालयन रीजन के ऊपर जाना पड़ रहा है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फाउंड अ मेथड टू स्टडी दिस। उनको ये एक जरिया मिल गया है कि इनके द्वारा वो स्टडी कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, कि वो एनिमल स्पीशीज के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा है। Number 5, sanitizers, soaps can do damage. Health experts at the All India Institute of Medical Science AIIMS here have warned that the increased use of antibiotics and the widespread use of hand sanitizers and antimicrobial soaps, especially during the COVID-19 pandemic, can worsen the situation of antimicrobial resistance. AIIMS ने ये वार्न किया है कि ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करना खतरा हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर्स और एंटी माइक्रोबियल सोप्स जो होता है, जो बैक्टीरिया या छोटे छोटे बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, ये दोनों ज्यादा मात्रा में नहीं यूज करना, क्योंकि अगर ये ज्यादा मात्रा में अगर कोई यूज किया तो उसके शरीर में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो वर्स हो जाएगा। With 65,524 COVID-19 cases recorded on Sunday, India's tally stood at 71,16,907. इंडिया का टोटल टैली हो गया है कोविड-19 अफेक्टेड का 71,16,907. As many as 796 new deaths were registered, taking the toll to 1,09,203. डेथ टोल, इंडिया का डेथ टोल हो चुका है 1,09,203. Number 6, school closure may cost India dear. The extended closure of schools amid the COVID-19 pandemic could dent India's future earning by anywhere between $420 billion and $600 billion, as depleted learning levels of students will translate into poorer productivity going forward, as per वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एक रिपोर्ट दी गई है कि इंडिया में स्कूल बंद होने के कारण से इंडिया का फ्यूचर अर्निंग बहुत कम हो जाएगा, जो $420 बिलियन से लेकर $600 बिलियन के बीच रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो वार्निंग that as many as 5.5 million students could drop out of school across South Asia. The bank has said dropouts combined with substantial learning losses for those who remain enrolled in school would cost South Asia as much as $622 billion in future earnings and gross domestic product. तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो स्कूल बंद रहेंगे इसके वजह से 5.5 मिलियन स्टूडेंट ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं स्कूल से, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पढ़ाई नहीं हो रहा है। और इंडिया में ऐसा भी हालत है नहीं, ऐसा भी डिजिटल नहीं है जो हर एक के पास लैपटॉप या फोन होगा पढ़ने के लिए। बहुत ऐसे गरीब स्टूडेंट्स है, गरीब फैमिली के स्टूडेंट्स है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इट विल बी हार्ड फॉर देम टू लर्न इन ऑनलाइन स्टडीज एंड ऑनलाइन एप्स, सो it will be very hard for India to cope up this. Number 7, Rafael Nadal wins French Open 2020. Rafael Nadal beats Novak Djokovic to win the men's 2020 French Open title. This is his 13th French Open men's single title and 20th Grand Slam title. Number 8, Azerbaijan-Armenia reports shelling of cities. Azerbaijan on Sunday accused Armenia of attacking large cities overnight in violation of the ceasefire deal brokered by Russia that seeks to end the worst outbreak of hostilities in separatist Nagorno-Karabakh region. Nagorno-Karabakh region के लिए जो फाइट हो रही थी, रशिया ने उसे रोकने की कोशिश की, एक डील भी हुई थी, लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया ने रातों रात वो डील को तोड़ दिया और फिर से एक दूसरे को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी कभी अजरबैजान आर्मेनिया पे
अक्यूज कर रहा है कि वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो कभी अर्मेनिया अक्यूज कर रहा है अजरबैजान को कि वो लोग अटैक कर रहे हैं। अजरबैजानी अथॉरिटीज सेड दैट 9 civilians were killed and more than 30 other wounded after Armenian force fired missile at Ganja। अजरबैजानी अथॉरिटी ये कह रहे हैं कि अर्मेनियन फोर्स रात को गांजा पे मिसाइल फायर किए थे, जिसके वजह से 9 सिविलियन की मौत हो गई और 30 इंजर्ड है। अजरबैजान सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है गांजा, और वो एक रेसिडेंशियल एरिया है। नंबर 9 एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट डेज, और 12 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।